Hello class 11th. In my previous video, I have shared some MCQs of chapter 4 business services. Today also I am going to discuss some MCQs of different chapters. Okay, as your exams are at hand and you need to be very sincere about your studies. So let's get started. Yes, we'll begin with this question 1. Every partner acts in the capacity of. Option A, an agent as well as a principal. B, only agent of the firm. C, only principal of the firm. और none of these. So हर पार्टनर जो फर्म का होता है वो एक एजेंट भी होता है और एक प्रिंसिपल भी होता है. प्रिंसिपल मीन्स मेन जो डिसीजन लेने वाला. अगर उसने अकेले ने डिसीजन ले लिया है तो भी सारे पार्टनर्स को उससे बाइंड होना पड़ेगा. एंड इफ he is taking decision with all together, then also they all will be binded with that act. So here option A will correct, an agent as well as a principal. Now second question, which of the following is a contract of indemnity? Indemnity means जो हानि के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्षति के लिए. सो लाइफ इंश्योरेंस, नो, नॉट एट ऑल. Okay, contract of indemnity. Okay, so life insurance is not a contract of indemnity. Life insurance is a contract of assurance. ठीक है, अगर हानि नहीं होती मीन्स डेथ नहीं होती है, लाइफ की हानि नहीं होती है, तो भी लाइफ इंश्योरेंस में गारंटीड रिटर्न मिलेगा. फायर इंश्योरेंस, देन मरीन इंश्योरेंस, ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता है. ठीक है, सो हियर टू ऑप्शंस आर करेक्ट, fire insurance and marine insurance. Both the options are correct and you will write your opinion. Okay, question 3, in case of the life insurance, insurable interest must exist at the time of. Life insurance में insurable interest कब होना चाहिए? At the time of taking policy or at the time of maturity or both A and B, and none of these. See here, whenever I'm teaching this life insurance, I'm just focusing on an example that suppose a husband has taken a life insurance policy on his wife's life. Now at the time of taking policy they were husband wife, but after 1 year they have got divorced. Now that life insurance policy will not get void because of the divorce. So here the option A only will come, that life insurance at the time of taking policy insurable interest must be present. Insurable interest means जो pecuniary interest है, financial interest है, जिसके नाम पर आप पॉलिसी ले रहे हो. ठीक है, तो पॉलिसी लेते टाइम pecuniary interest present था, so लाइफ इंश्योरेंस में बस उतना ही काफ़ी है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस? वेरी इजी. लाइफ इंश्योरेंस इज द ओनली इंश्योरेंस विच इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस, एंड रेस्ट ऑल इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस come under general insurance and they are known as indemnity. Okay, contract of indemnity, not contract of assurance. Okay, next question is, in case of which card holder can spend money only up to the balance in his account? अकाउंट में जितना अमाउंट है केवल उतनी ही मनी उसमें वो स्पेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं. देखिए, क्रेडिट कार्ड तो उन लोगों को मिलता है जिनकी की गुडविल अच्छी है, तो बैंक उनको अलाउ करता है, उनके अकाउंट में अगर अमाउंट नहीं है तो भी बैंक उनके बिहाफ पे पेमेंट करता है. ओके, सो हियर इन ऑप्शन in question 5 this option B is correct, डेबिट कार्ड, बिकॉज डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों में ये फैसिलिटी नहीं मिलती, केवल और केवल ये क्रेडिट कार्ड में ही ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है. तो हियर holder can spend money only up to the balance in his account is the debit card. Okay, then let's move on to the next question. Which bank service permits withdrawal of money more than the balance in the account? So
the previous question, the same question is coming in a different way. Okay, withdrawal of money more than balance, so it is very simple, bank overdraft. क्योंकि बाकी तो और किसी में अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो उससे ज़्यादा का विड्रॉल नहीं एक्सेप्ट करता बैंक, केवल बैंक ओवरड्राफ्ट में करता है, जो कि कुछ स्पेशल लोगों को जिनकी गुडविल बैंक के सामने अच्छी होती है उन्हीं को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली इन केस ऑफ, लॉस के टाइम पे जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए वो होता है मरीन इंश्योरेंस के टाइम में. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में तो जब पॉलिसी ले रहा है तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, और फिर फायर इंश्योरेंस भी क्या है, दोनों टाइम पे, पॉलिसी लेते टाइम पे भी और पॉलिसी मीन्स जो लॉस होते टाइम भी, दोनों टाइम पे यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. बट मरीन इंश्योरेंस में क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Yes, next question is Quicker and OLX are examples of which of the following category of e-business? Quicker और OLX आपने भी नाम सुना होगा. तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, हम अपना जो पुराना सामान है, ठीक है, वो हम सेल आउट करते हैं बेसिकली. सो बिजनेस टू कॉमर्स तो है ही नहीं, बिजनेस तो इसमें इन्वॉल्व होता ही नहीं है, इंट्रा भी कॉमर्स भी नहीं है, ये है कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स. ठीक है, इसमें एक कंज्यूमर अपनी जो ओल्ड थिंग्स हैं वो दूसरे को सेल आउट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा C2C कॉमर्स में, ये इंक्लूडेड है. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट इन केस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग. अब यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग में कैसे पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, डेबिट कार्ड से भी हो सकता है, नेट बैंकिंग ट्रांसफर से भी पेमेंट हो सकता है. सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज creating blogs to form various consumer forums and pressure groups through which an aggrieved customer can share his experience about a product is an example of. अब aggrieved customer means ऐसा कस्टमर जो कि जिसको की प्रॉब्लम हुई हो. ठीक है, तो means he can share his experience about a product. तो वो अपने रिव्यूज़ लिखता है कि वो हैप्पी है नहीं है, तो वो वहाँ पे वो एक ब्लॉग लिखता है या वो एक अपना जो रिव्यू देता है. तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, ऑफ कोर्स ये C2C कॉमर्स का एग्जाम्पल है. ओके, because he is expressing his own reviews about the product without any force, without any payment. Okay, so here option B is correct. Next is which form of electronic currency exists only in cyberspace? This question is out of course this year, but it is very general question because credit card and debit card, these are plastic money. Okay, so these are नॉट एग्जिस्टेड इन साइबर स्पेस. डिजिटल कैश एक ऐसी मनी है जो कि केवल और केवल वो साइबर स्पेस में, साइबर वर्ल्ड में ही होती है. ओके, वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन नॉट यूज इट थ्रू अ कोड. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रा कॉमर्स ट्रांजेक्शंस मे बी कंडक्टेड फॉर. ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बी inventory and cash management, then selling and distribution of goods और आफ्टर सेल सर्विस. देखिए, इंट्रा बी कॉमर्स जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू इंटरनेट. ओके, दैट इज नोन एज इंट्रा बी. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स उस डिपार्टमेंट का ही एक, उस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ हो सकता है. देन इन्वेंट्री एंड कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट और कैश जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है उसके मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है. बट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, अब जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो होगा किसी और बिजनेसमैन को, किसी और बिजनेस फर्म को. तो ये इंट्रा बी का एक पार्ट नहीं है, वो B2B का एक पार्ट है. एंड आफ्टर सेल सर्विस इज ऑल्सो नॉट
a part of intra-B. It is also a part of B2C commerce. ओके तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों ही आएंगे. दैट इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शंस मे बी इंक्लूडेड फॉर ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑप्शन बी इन्वेंट्री एंड कैश मैनेजमेंट. बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी. That an enterprise should avoid any type of pollution is an example of its responsibility towards. See, this question has come of this chapter 6. So, owners, workers, consumers और community, एक organization को किसी भी तरह का जो पोल्यूशन है वो रोकना चाहिए. तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, ये कम्युनिटी के लिए है कि वो किसी भी तरह का पोल्यूशन वो रोक रहा है या उसे रोकना चाहिए. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी. ऑप्शन डी. The next is use of synthetic fertilizers and pesticides in agriculture leads to water pollution, noise pollution, land pollution or air pollution. See, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो उससे जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो उसको हार्म होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका आएगा इट लीड्स टू लैंड पोल्यूशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन. टू अडॉप्ट fair trade policies and practices. It is an example of responsibility of business towards. Now, fair trade practices और जो policies है ये अगर adopt कर रहा है तो इससे सबसे ज़्यादा happy कौन होंगे? गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट जो है वो आप पे कोई भी फाइन वहाँ इम्पोज नहीं करेगी. ठीक है, कोई भी जो है वो टैक्स इम्पोज मीन्स जो आपको फाइन नहीं देना होगा. तो यहाँ पे फेयर ट्रेड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस का जो है ये एग्जांपल है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट. नेक्स्ट है. डैश हैज रिजल्टेड इन ओजोन डिप्लेशन विच इज लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड डेंजरस वार्मिंग ऑफ द अर्थ. नाउ दिस जो ओजोन डिप्लेशन क्यों हुआ है, कौन से पोल्यूशन के कारण हुआ है? ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो जो हार्मफुल गैसेस जो फैक्ट्रीज से जो निकल रही हैं उसके कारण ओजोन डिप्लेशन हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है उसके कारण ऐसा हुआ है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Business A is responsible to provide accurate and complete financial position of the company. This responsibility is towards consumers, workers, shareholders और government. अब जो business complete financial position जो है accurate financial position provide कर रहा है तो इसे सबसे ज़्यादा जो benefit है वो shareholders को होने वाला है. ठीक है, shareholders के सामने बिल्कुल करेक्ट पोजीशन कंपनी की शो हो रही है. ठीक है, तो इससे वो डिसीजन ले सकते हैं कि उनको इसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट बनाए रखना है या इस कंपनी से जो पैसा है निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी शेयर होल्डर्स आएगा. एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन. Okay, let us discuss social responsibility of business to ensure regular supply of goods and services is towards. रेगुलर सप्लाई जो है गुड्स और सर्विसेज की अगर ये प्रोवाइड कर रहा है तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है? ओनर्स को तो होने वाला है नहीं. ठीक है, गवर्नमेंट को भी नहीं होने वाला है, कंज्यूमर्स को ही होगा ताकि कंज्यूमर्स जो हैं वो हैप्पी होंगे, है ना. वो गुड्स और सप्लाई सर्विसेज की जो सप्लाई वो रेगुलर है तो कंज्यूमर्स जो हैं वो किसी और प्रोडक्ट पे मूव नहीं होंगे, स्विच नहीं होंगे. अदरवाइज वो जैसे हमारे पास अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा हम डिमांड करते हैं बट वो प्रोडक्ट अनअवेलेबल है और हमें इमरजेंसी है तो हम क्या करेंगे? हम दूसरे प्रोडक्ट दूसरी ब्रांड पे स्विच कर जाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए तो जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो इंश्योर करते हैं दैट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी रेगुलर. So it is an example, it is the service responsibility towards consumer. Option B is correct. For today, this much only. I hope you have got very well all these questions. Still, if you have any doubt, you can ask me through your comments. Thank you. Have a nice day.